حسین کی حشمت نہ پوچھئے، کوئی جتنے بھی ذاکرین ہیں سب کو میرا سلام، جتنے بھی ذاکرین ہیں سب کو میرا سلام، پر ذاکر بطول کی عظمت نہ پوچھئے، پر ذاکر بطول کی عظمت نہ پوچھئے۔ تو میں اس وقت علامہ صاحب کو بطور ذاکر بطول دعوت دے رہا ہوں کہ آج آئیں تشریف لائیں اور آج کی مسجد سے خطاب فرمائیں۔ جناب عمار یاسر بھائیو عسکریوں، یا کہ آخر و زمان خون ان کا کہہ کر خالق سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، سادات و سادات، راستے کے موضوع پر آج یہ ہماری چوتھی اور آخری نشست ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہے گی تو ملاقاتیں بھی رہیں گی، آپ سے گفتگو بھی رہے گی۔ جلدی سے ترجمہ دہرا کے گفتگو آگے لے کے چلوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا ایک ہی سیدھا راستہ ہے، ایک راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو۔ پتا چلا اللہ نے قانون بنا دیا، اللہ نے کہا کہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی سچا، یہ بھی سچا۔ اللہ نے کہا بہت سے راستوں کی پیروی مت کرو۔ اگر تم نے بہت سے راستوں کی پیروی کی تو وہ تمہیں میرے راستے سے جدا کر دیں گے۔ مجھے آپ کو نتیجہ دینا ہے اس موضوع کا۔ بھلے آج میں تھوڑی دیر سے بیٹھا ہوں، جو میرے عزادار باہر میں تشریف فرما ہے ان سے بھی میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اگر تھوڑی دیر ہو بھی جائے تو آپ گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ آپ اپنے شہر میں بیٹھے ہیں، مجھے پھر واپس حیدرآباد جانا ہے اور کل صبح پھر مجھے اسلام آباد جانا ہے۔ تو آپ میری پرواہ نہ کریں، آپ صرف میرے ہم سفر ہوتے آئیں تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ دیکھیں نوجوانوں، آج میں آپ سے تھوڑا قریب آ کر بات کروں گا، کیونکہ 3 دن میں نے مسلسل آپ سے گفتگو کی ہے، اب آپ کا ذہن میرے ذہن کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ نوجوانوں، دین اسلام میں توجہ چاہوں گا، دین اسلام میں ہر چیز مشروط ہے، کوئی بھی چیز غیر مشروط نہیں کہ بھائی جیسے چاہو نماز پڑھو۔ آج اگر آپ چپ تو میں بھی چپ، سورج نکل گیا ہے مجھے پرواہ نہیں، قبلہ جیسے چاہو نماز پڑھو۔ میرے بھائی کون سی قرآن کی آیت ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، 3 دن میں نے آپ سے گفتگو کیا تو ذہن آپ کا مل جانا چاہیے۔ میں نوجوانوں کو کہوں گا، بزرگوں کو نہیں، میں تم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں بھائی جیسے چاہو نماز پڑھو، جیسے چاہو پڑھو۔ یہ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ جیسے چاہو پڑھو، جیسے چاہو روزہ رکھو۔ میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، میں نے کہا نا مجھے کراچی کے نوجوانوں سے گھبراہٹ نکالنی پڑے گی، میں آسان کر دیتا ہوں۔ مذہب شیعہ میں
یہ قانون ہے. ہمارے روزہ ایسے نہیں رکھا جاتا کہ فرض کرو صبح بچہ نیند میں سے اٹھے, کمرے سے باہر نکلے, امی نے کہا بیٹا آج رمضان ہو گیا, اچھا امی میں پانی نہیں پیوں گا, روزہ ہو گیا. جب تک روزے کی نیت کر کے سوئے گا نہیں. اب بولا ہے مجھ سے مجمع, جب تک روزے کی نیت کر کے سوئے گا نہیں تب تک روزہ نہیں. یہ رواج ہمارے نہیں ہے, اوروں کا ہے. نیند میں سے آنکھ کھلی, نکلے کمرے سے, گھر والوں نے کہا بھائی رمضان ہو گیا, ہاں اچھا بھائی کھانا پینا ہٹا, روزہ ہے. انہوں نے تو اسلام بھی ایسی قبول کیا. توجہ چاہ رہا ہوں میں فخر بھائی, میں نے کہا آخری مجلس ہے, توجہ چاہ رہا ہوں. ہر چیز مشروط ہے, کوئی بھی چیز غیر مشروط نہیں. اب میں گفتگو کو آغاز کرتا ہوں, توجہ آپ سب کی چاہوں گا. جب اللہ نے نماز کے لیے پکارا تو یہ جملے ہیں قرآن کے, یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ, اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو. توجہ چاہ رہا ہوں, سارا مجمع خود ہی بولے گا, خود ہی. اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو. تمہاری چپ دے کر مجھے جملہ سمجھانا پڑ گیا. کیا؟ اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو. پتا چلا اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے, بے ایمانوں کو نہیں. اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے, بے ایمانوں کو نہیں. اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو. قبلہ موجود تھے بھوترات میں, میں اپنے سامنے نہیں بھولتا. میں نے آپ سے کہا تھا بندگی میں بات کروں گا اس اشرے میں. اب میں توجہ چاہوں گا. میں نے یہ قبلہ موجود تھے بھوترات کو, میں نے 28 محرم کو پڑھا تھا, 28 یا 29 محرم تھی, تو اس میں نے کہا تھا بندگی میں بات کروں گا اس خبر سے. اب قبلہ اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو. پتا چلا نماز کے لیے اللہ نے شرط ایمان کو رکھا. میں توجہ چاہ رہا ہوں, یہ کراچی کا مجموعہ ہے میرے بھائی. یہ عبد الحکیم کا بیٹا تم سے بات کر رہا ہے, کسی جاہل کا بیٹا بات نہیں کر رہا. زندگی میں میرے بابا نے 28 سال اشرا اس کراچی شہر میں پڑھا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں. میرے سامنے بیٹھو تو دماغ کھول کے بیٹھو. کیا اللہ نے بندگی کے لیے شرط رکھا ایمان کو. اللہ نے کہا اگر ایمان ہے تو نماز ہے, اگر ایمان ہے تو روزہ ہے, ایمان ہے تو زکات ہے, ایمان ہے تو حج ہے. پتا چلا بندگی کے لیے اللہ نے شرط رکھی ایمان کو. اللہ نے کہا اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو. اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, میں نے کہا ٹائم کی پرواہ نہ کرے, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو. اب کتنا توجہ چاہوں گا, اب چلتا ہوں قرآن کی طرف. آخر بات دیکھنا تو پڑے گا ایمان ہے کیا. قبلہ دیکھنا پڑے گا ایمان ہے کیا. تو اللہ نے سورۃ مائدہ میں ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ نے کہا جس نے توجہ جس
हमने उसके तमाम अमाल को रायगा बना दिया। किबला नमाज पढ़ी खत्म, रोजा रखा खत्म, हज किया खत्म, ज़कात दी खत्म। या अल्लाह कसूर क्या किया? कहा ईमान से कुफ्र किया। तवज्जो कर रहा हूं, कुफ्र क्या किया? ईमान से। अल्लाह ने कहा जिसने ईमान से कुफ्र किया तो हमने उसके तमाम अमाल को रायगा बना दिया और कयामत में वो घाटे उठाने वालों में से होगा जिसने कुफ्र किया ईमान से। ईमान से कुफ्र किया खत्म, इबादत खत्म। अल्लाह ने कहा कयामत में वो घाटे उठाने वालों में से होगा। मैं मुनीर भाई आज चारदा मासूमी इंचोरी में कह रहा हूं कि अगले साल तक इनको ये तकरीर मेरी आज की याद रहेगी। क्या? जिसने ईमान से कुफ्र किया, अल्लाह ने कहा मैंने उसकी तमाम अमाल को रायगा बना दिया और कयामत में वो घाटे उठाने वालों में से होगा। अब तवज्जो चाहूंगा, जो बाहर बैठे, अंदर बैठे, खड़े हैं, बैठे, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, तवज्जो। अब जिस अल्लाह ने सूरत मायदा में ये कहा, उसी अल्लाह ने सूरत बकरा में इरशाद फरमाया फमन यकफुर बित्तागूत व यौमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अब अल्लाह ने कहा जिसने तागूत से कुफ्र किया, बड़ा जुमला था मेरा कराची वाले, वहां था ईमान से कुफ्र, यहां अल्लाह कह रहा है तागूत से कुफ्र। जिसने तागूत से कुफ्र किया और फिर अल्लाह पर ईमान लेकर आया तो उसने एक ऐसी रस्सी को मजबूती से पकड़ा जो कभी टूटने वाली नहीं। जो मेरी पहली तकरीर में मौजूद थे उसमें मैंने ये जुमला कहा था, वो जुमला फिर दोहरा के आगे बढ़ता हूं कि मेरे भाई अल्लाह ने कोई आसमान से रस्सी थोड़ी फेंक रखी है कि लोगों को बोले जाओ भाई रस्सी पकड़ो। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है कि जिसने तागूत से कुफ्र किया और फिर अल्लाह पर ईमान लेकर आया तो उसने एक ऐसी रस्सी को मजबूती से पकड़ा जो कभी टूटने वाली नहीं। जो नहीं थे उनके लिए जुमला दोहरा रहा हूं। यही सबब है कि जब मौसूम से पूछा गया ये रस्सी क्या है तो कहा ना हम 14 वो रस्सी है। अब जो चाह रहा हूं हम 14 वो रस्सी है, लेकिन कितना बात आगे, ये तो जो उस दिन मजमा नहीं था मैंने उनके लिए जुमला दोहराया, बात आगे है। किबला पता चला, तवज्जो, वहां अल्लाह कह रहा है ईमान से कुफ्र ना करो नहीं तो इबादत रहेगा। यहाँ अल्लाह कह रहा है तागूत से कुफ्र करो, तागूत से कुफ्र करो, फिर मुझ पर ईमान लाओ। फिर पहले तवल्ला है फिर तवल्ला। तवज्जो चाहूंगा, ये नौजवान तबका तवज्जो चाहूंगा, पहले तवल्ला है फिर तवल्ला। अब किबला जब ये आयत नाज़िल हुई, तवज्जो, मैंने कहा मुनीर भाई अगले साल तक चाहता मासूमी वालों को ये तकरीर याद रहेगी। जब ये आयत नाज़िल हुई, आए रसूल के पास आए, भाई आज तुम हम पे कोई इल्जाम लगाते हो, हम पे शिया उलमा को अरबी नहीं आती, इनको अरबी की माने नहीं आती, तो अब्दुल हकीम का बेटा तुमसे मेरी जिस जबान में बात करते हैं ना, मैं उस जबान में इनको जवाब देना चाहता हूँ। आज इन नौजवान को गुमराह करने के लिए तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे साथियों को अरबी आती है, गलत माने करते हैं कुरान की आयतें गलत पढ़ते हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के पूछता हूँ, ये जो हर बात रसूल से पूछते थे ये उर्दू में पूछते थे?
ये जो रसूल से पूछते थे क्या उर्दू में पूछते थे? अरे ये तो अरबी में तुम्हारे बाप थे। समझो चाह रहा हूँ, ये तो अरबी में तुम्हारे बाप थे, फिर पूछते क्यों थे? पता चला जब तक कुरान मौसूल ना बताएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। अब कराची वालों सुस्ती खत्म करो, मेरे हमसफर बनो। यही सबब है जब सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह ये ताहूत क्या है, तवज्जो, या रसूल अल्लाह हवाला चाहिए, हवाला भी अब्दुल्लाह का बेटा देगा, सवाई के मौका में जाकर देखो, ये रिवायत तो मौजूद है। क्या या रसूल अल्लाह ये ताहूत क्या है कि जिससे कुफ्र करो फिर अल्लाह पर ईमान लेकर आओ? रसूल ने दो जुमले कहे, रसूल ने ज्यादा कुछ कहा ही नहीं कि ताहूत किसे कहते हैं। कहा या रसूल अल्लाह ताहूत क्या है, सर था। रसूल ने सिर्फ दो जुमले कहे, क्या कहा? मन हार वाली, बस जो भी अली से लड़े ये जुमला समझ जाते तो और झूमते, जो भी लड़े, जो भी लड़े, जो भी अली से लड़े। रसूल ने ये नहीं कहा कि मुझसे लड़े, जो अली से लड़े, अली से, अली से। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ रसूल ने ये क्यों कहा कि जो अली से लड़े। मैं इस पे देखो, बात से बात भी करती है, आप मुझसे बात करें। मैं अक्सर अपनी मजालिस में कहता हूँ नौजवानों घड़ी देकर वो पढ़े या तो जिसके पास फजाइल की कमी हो, या जिसको ये फिक्र हो कि भाई अभी तो मैंने 4 महीने कराची में पढ़ ली, कल को कोई और दावत मिलेगी तो फिर क्या पढ़ूंगा। तो ये बात नहीं है। मैं जिस हस्ती का बेटा हूँ वो 2-2 घंटे बंदी से पढ़ता था, मैं तो फिर भी आपको रियायत देकर 1.5 घंटे में छोड़ देता हूँ। समझ होता है क्या? अब भाई रसूल को कहना चाहिए था जो मुझसे लड़े वो ताबूत है, वो ताबूत है। रसूल ने कहा जो अली से लड़े वो ताबूत, वो ताबूत। या रसूलुल्लाह हमेशा मेरे अली का नाम लेते हैं, कभी कहीं अपना भी ले। अब यही सबब, यही सबब ये वाक़या है जंगे बदर का। तवज्जो चाह रहा हूँ, जंगे बदर का। जब जंगे बदर में मेरा मौला गया ना पानी की मश्क भरने, मश्क भरने, इधर पानी की मश्क भरी, तवज्जो चाह रहा हूँ, इधर पानी की मश्क भरी, या अल्लाह ने 70,000 मलाइका से कहा कि जाओ जाकर मेरे अली को सलाम करो। तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो, जाओ जाकर मेरे अली को सलाम करो। तो मलाइका ने कहा या अल्लाह किस तरह सलाम करे? अल्लाह ने कहा इस तरह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीर, तवज्जो, जुमला सुनना फिर बोलना, ए अमीरुल मोमिनीन तुम पर सलाम। तवज्जो चाहता हूँ, अभी बता रहा हूँ कि रसूल ने अली का नाम क्यों लिया, अपना क्यों नहीं लिया। इसके पीछे भी राज है। क्या? जैसे ही 70,000 मलाइका ने अली को सलाम किया, अली ने 70,000 मलाइका को कहा मेरे पास क्यों आए हो, रसूल के पास क्यों नहीं गए? तवज्जो चाह रहा हूँ, मेरे पास क्यों आए हो, रसूल के पास क्यों नहीं गए? तो मलाइका ने कहा हमें खुदा ने कहा है कि मैं अपने रसूल के मिजाज से वाकिफ हूँ कि जब तक अली राजी नहीं होता रसूल राजी नहीं होता। मिलके है अली, जब तक जाहिलों को हम रकाबे
से क्या लिखते रहे, वो क्या से क्या लिखते रहे, और शेख जी की इस शरारत को भला मैं क्या कहूँ। हुजूर मिसरा पेश करो कि शेख जी की इस शरारत को भला मैं क्या कहूँ। लापता लिखना था जिनको, लापता लिखते रहे। नारे हैदरी। जब तक अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने जब तक अली राजी नहीं, मेरा रसूल राजी नहीं। अब मैं तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो किबला। मैंने कल भी कहा था, जो आखिरी के मेरे जुमले थे, मैंने कहा एक करबला मोहल्ला, मैंने कहा आखिरकार किबला अभी भी बात वाज़ेह नहीं हुई, अभी भी बात वाज़ेह नहीं हुई। अल्लाह ने जो ईमान के लिए, जो अल्लाह ने कहा ईमान नहीं, भले सारी जिंदगी इबादत करो कोई फायदा नहीं। तो नौजवानों आखिरकार पता तो चली ये ईमान रहता कहाँ है। तवज्जो चाह रहा हूँ, जो बाहर भी मेरे अज़ादार बैठे, तवज्जो चाह रहा हूँ कि आखिरकार पता तो चली ईमान रहता कहाँ है। बगदाद शरीफ में रहता है, अजमेर शरीफ में रहता है। आखिरकार ये ईमान रहता कहाँ है, कहाँ रहता है ये ईमान, कहाँ। तवज्जो चाह रहा हूँ, चलता हूँ कुरान की तरफ। कुरान बात में अब्दुल हकीम की बेटा, सारी जिंदगी अब्दुल हकीम ने भी बात कुरान की, उसका बेटा भी कुरान की बात करता है। चाहूँ तो हदीस भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हारे बड़ों ने कहा था कि कुरान काफी है। तवज्जो चाह रहा हूँ, तुम्हारे बड़ों ने कहा था कि कुरान काफी है, इसीलिए अब्दुल हकीम का बेटा तुमसे तुम्हारी जबान में बात करता है। ये उनका अल्लाह ईमान के लिए अल्लाह ने इबादतें रायगा बना दी। क्या पता मुझे आखिरकार ये ईमान रहता कहाँ है, कहाँ रहता है। बगदाद शरीफ में रहता है, अजमेर शरीफ में रहता है। चलता हूँ कुरान की तरफ, इरशाद हो रहा है सूरत अल हुजरात में, तवज्जो, वला किनल्लाह हब्बा अलैकुमुल ईमान। इरशाद हो रहा है अल्लाह ने कहा मैं अल्लाह तुम्हारे लिए ईमान से मोहब्बत करता हूँ। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, समझोगे सारे बोलोगे। मैं अल्लाह तुम्हारे लिए ईमान से मोहब्बत करता हूँ। वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, और मैंने ईमान को ज़ीनत दी है तुम्हारे दिलों में। किबला, हालांकि ये मैंने जल्दी में ईमान कह दिया, हालांकि ईमान के आगे अलिफ लाम है। कुल का कुल ईमान, कराची वालों को समझाना पड़ता है, समझा। कुल का कुल ईमान, अल्लाह ने कहा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसको ज़ीनत दी है तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे दिलों में। अब आयत आगे चली, जल्दी जल्दी करो, आयत आगे चली। वकर्रहा अलैकुमुल कफरा वल फुसूका वल इस्यान, और मैं अल्लाह तुम्हारे लिए 3 से नफरत करता हूँ। तवज्जो चाह रहा हूँ, मैंने कुरान की आयत का तर्जुमा किया है। मैं अल्लाह तुम्हारे लिए 3 से नफरत करता हूँ। या अल्लाह कौन 3? का शिर्क
कई लोगों का ज़हन इधर उधर ना चला जाए, शिर्क से, कुफ्र से, इस्यान से। ईमान से मोहब्बत करता है, ये मयार है कराची का। ऐसे चलो तो बात बने ना, ऐसे चलो तो बात बने। क्या किबला मैं शुक्रगुजार हूं आपके बोलने में, क्या ईमान से मोहब्बत करता है, दीन से नफरत करता है। अब किबला आयत की तफसीर हमने तो नहीं की। अल्लाह कह रहा है ईमान से करता हूं मोहब्बत, दीन से करता हूं नफरत, और ईमान को जीनत दी है मोमिन के दिल में। अब कराची वालों में मुनीर भाई, मैंने कहा अगले साल तक इनको ये तकरीर याद रहेगी। ईमान को जीनत दी दिल में, दिल में, दिल में। अब यहाँ पे मैंने कहा कराची उलमाए कराम का शहर है। आप किसी से जाकर पूछना, मैं आपका अपना हूँ, कोई पराया नहीं। गलत बोलूं आइंदा मजलिस पढ़ते आऊं, या सिर्फ मेरा फोन नंबर मुनीर भाई से ले लेना, मुझे बोलना आपने गलत कहा था, लेकिन अगर सही कहा तो आज ज्यादा मासूमी में ऐसे बात करना कि पता चले कि अली के बरक इकट्ठा होकर बैठे हैं। क्या अल्लाह कह रहे हैं ईमान को जीनत दी मोमिन के दिल में। जाकर उलमाए कराम के सर पे कुरान रखकर पूछो, अरबी की जो किताबें इब्तदा से लेकर इंतहा तक जितनी अरबी की किताबें पढ़ाई जाती है, सब में ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह ने फरमाया मैं अल्लाह अर्श पे नहीं रहता, मैं अल्लाह मोमिन के दिल में रहता हूं। तवज्जो, मैं अल्लाह अर्श पे नहीं रहता, दिल में रहता हूं, दिल में। या अल्लाह तू दिल में क्यों रहता है? कहा बेवकूफ, क्योंकि वहां ईमान रहता है। तवज्जो कर रहा हूं, कहा ईमान रहता है, ईमान। अब किबला हाथ जोड़ के फखर भाई अम्मार कहता है हाथ जोड़ के कि लोगों ने तो किबला ये हदीस लिख दी, लेकिन अब अम्मार यासिर कहता है या अल्लाह तू ला महदूद, तू ला मकान। मैंने कहा कराची वालों अब मेरे जज्बात की कदर करना, मैं बड़ा सेंसिटिव हूं मेरे भाई इन मामलात में। क्या मैंने कहा या अल्लाह तू ला महदूद, तू ला मकान, दिल है इतना साफ। तवज्जो कर रहा हूं, दिल है इतना साफ, तू ला महदूद होकर, तवज्जो, तू ला महदूद होकर इस दिल में कैसे रहता है? मैंने कहा मुनीर भाई अब आपका मजमा धमाल ना मारे तो अब्दुल हकीम का बेटा देखता है क्या? मैंने कहा या अल्लाह तू ला महदूद होकर इतने से दिल में कैसे रहता है? कुदरत की आवाज है अम्मार यासिर तुझे मैं समझाता हूं। अल्लाह ने कहा अम्मार यासिर ये काबा घर है मेरा। तवज्जो, तवज्जो, अल्लाह ने कहा ये काबा घर है मेरा, लेकिन अम्मार यासिर मैं इसमें रहता तो नहीं, तो फिर ये मेरा घर कैसे बना? सारुका, फिर ये मेरा घर कैसे बना? सारुका, ये अल्लाह ने कहा ये मेरा घर ऐसे बना कि जो इंसानों के बनाए हुए थे उनको निकाल कर मैं अली को लाया। तवज्जो, जो बाहर बैठे अंदर बैठे, जो इंसानों के बनाए हुए थे उनको निकाल कर मैं अली को लाया। अब काबा घर है मेरा। अगर तू भी चाहता है कि मैं तेरे दिल में रहूं तो जो इंसानों के बनाए हुए हैं उनको निकाल कर दिल में अली को ला। कौन कौन और आली है कौन कौन? ये आला है कौन कौन और आली है कौन कौन? हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन? नारा लगा के तो देख तू हैदर के नाम का चेहरे बताएंगे कि हलाली है।
ताला ने भेजा मैं दीन बताने के लिए, मजहब बताने के लिए, तो रसूल का काम था कि बिला एक दफा हज किया तो दूसरी दफा भी करके दिखाता साहबों को, देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है। क्या काबा रसूल से दूर था क्या? बोलो, काबा दूर था क्या? नहीं। तो फखर भाई मुझे कितना समझ में नहीं आता, जिंदगी में हज किया एक और वापसी में किया अली की विलायत का ऐलान। समझो, केवल हज किया एक अपनी जिंदगी में एक हज किया, एक किया हज, वापसी में किया अली की विलायत का ऐलान। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अब तो अली की विलायत भी आ गई, अब खतीब के बाद अगले साल फिर हज करते, फिर क्यों नहीं किया? कहा अम्मार यासिर तू मुसलमानों के मिजाज से वाकिफ नहीं, अगर मैं खतीब के बाद, तवज्जो, अगर मैं खतीब के बाद दूसरा हज करता तो आज मुसलमान कहते कि भाई रसूल ने फला हज में ऐलान किया था, फला में नहीं किया था, इसीलिए मैंने जिंदगी में एक ही हज करके और अली की विलायत का ऐलान करके मामला ही खत्म कर दिया कि जब भी कायनात को मेरा हज याद आए, मैं अली की विलायत याद आए। अली आया काबे के सामने, तारीखों में लिखा सलमान साथ है, सहाबी रसूल के साथ, सलमान अली के साथ। तवज्जो चाहो ना, तवज्जो, सहाबी रसूल के साथ, सलमान अली के साथ। अली आया काबे के सामने, मैंने कहा अल्लाह कह रहे हैं घर है मेरा, मैं इसमें रहता नहीं रहता। आया अली काबे के सामने, काबे को देख कर अली ने कहा अस्सलामु अलैका या बैते बैतुल्लाह। तवज्जो, तवज्जो, ये कराची है, कराची। क्या अस्सलामु अलैका या बैते बैतुल्लाह, ए अल्लाह के घर का घर, तुझ पर सलाम, तुझ पर सलाम। तवज्जो चाह रहा हूं, तुझ पर सलाम।
ने कहा ईमान से करता हूँ मोहब्बत, 3 से करता हूँ नफरत। अल्लाह ने आयत मैंने कहा आयत कभी अधूरी ना पढ़ो, पूरी पढ़ो। अल्लाह ने आगे कहा उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह ने कहा राशिद वो है, राशिद माने हिदायत याफ्ता। मैं एक एक चीज समझाऊंगा, मेरी ड्यूटी है कि कल को किसी के जहन में कोई सवाल कोई शुभा बना रहे हैं। क्या राशिद माने हिदायत याफ्ता। अल्लाह ने कहा हिदायत याफ्ता वो है। अब करूंगा इशारा, जो हिदायत याफ्ता होगा वो खुद ही बात करेगा। अल्लाह ने कहा हिदायत याफ्ता वो है जो ईमान से मोहब्बत करते हैं, 3 से नफरत करते हैं। है 3 से नफरत करते हैं। अब बात और वासी नौजवानों कायनात में, मैं कहता हूँ खुदा की कसम क्या कुदरत का कानून है, कायनात में हर चीज का जिद है। तवज्जो, हर चीज का जिद है। दिन का रात, सुबह का शाम, अंधेरे का रोशनी, जुल्म का अदल। कायनात में वाहिद एक लफ्ज है ईमान। जो पहुंचे हो मैं दावा करता हूं, कायनात में वाहिद ईमान है जिसके जिद 3 है। कायनात में वाहिद ईमान है, वाहिद जिसके जिद 3, शिर्क, कुफ्र, निफाक। ये बात तो आज खुलेगी, आज तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, शिर्क है। जो बाहर बैठे हो तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, कुफ्र खत्म। अभी एक जिद बाकी है, तवज्जो चाह हूं। अभी एक जिद, मैं जुमला कह रहा हूं आज कराची में, अभी किबला एक जिद बाकी है। और नौजवानों, सियासत से लेकर मैं तुम्हें किताबें दिखा सकता हूं, मैं कि रसूल ने कहा या अली हुब्बो का ईमानन व या अली बुग़्ज़ो का निफाक़। तवज्जो, या अली आपसे मोहब्बत है ईमान, आपसे बुग़्ज़ है निफाक़। अब तुमने ला इलाहा कहा, शिर्क खत्म, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कुफ्र खत्म। अभी एक जिद बाकी है, जब तक जिद ना निकालेगा ना मोमिन बनेगा ना ईमान मुकम्मल होगा। तवज्जो, ना मोमिन बनेगा ना ईमान मुकम्मल होगा। अरे आज सर उठा, आज समझ में आया कि ये लोग जो अली वलील्लाह के ऊपर जिद करते, जिद पता चला अभी तक इनका एक जिद निकला ही नहीं है। मिलके हैदरी, पता चला, क्योंकि अल्लाह ने कहा ये जिद है। जब तक जिद नहीं निकाली, नहीं पता ना पढ़। अरे आज अली की मोहब्बत की मस्ती में अम्मार यासिर ये जुमला कहता है, जो अली की विलायत को बातिल कहता है, मैं उसके वजूद को बातिल कहता हूं। समझो, ये समझा क्या है? ये कुरान है, कुरान। मैंने बुखारी की हदीस नहीं पढ़ी, कोई मारी
जिद ना मोमिन बनोगे, ना ईमान मुकम्मल होगा। अभी आयत पढ़ना और बाकी है, तवज्जो चाह रहा हूँ, तवज्जो। अब इसीलिए अल्लाह ने सूरत आले इमरान में इन्नल लज़ीना कफरू बादा ईमानिहिम, मेरे हबीब ये ईमान लाने के बाद के काफिर हैं। तवज्जो चाह रहा हूँ, तवज्जो। अभी भी नहीं समझ में आएगा, अभी भी नहीं समझ में आएगा। मेरे हबीब ये ईमान लाने के बाद, समझे, ईमान लाने के बाद, बाद की काफिर, ईमान लाने के बाद काफिर। काफिर किसी को हवाला चाहिए मैं अभी दे सकता हूँ, अभी मजलिस पढ़ के बैठा हूँ, अभी ले ली। ईमान लाने के बाद, बाद, ईमान लाने के बाद काफिर, बाद। यही सबब है इमाम के पास आए, कहा मौला ये अल्लाह ने आले इमरान में कहा मेरे अभी के ईमान लाने के बाद काफिर है, तो या मौला ये ईमान लाने के बाद फिर कैसे काफिर हो गए? अब सर उठा तो इमाम ने फरमाया पहले तो ये मेरे नाना की रिसालत पर ईमान लाए, लेकिन जब खतीब में अली की विलायत सुनी तो ईमान पे बैठ गए। मिलके है अली, ज़मीर अहमद साहब ने भी बड़ी मेहनत की, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे लग रहा है ये और पीछे चला गया। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो। मैं कहता हूँ नौजवानों, मेरे बच्चों जो छोटे बैठे हैं, जो मेरे नौजवान भाई हैं, मैं आपसे कहता हूँ जिस तरह आप सारा दिन फेसबुक को, मैसेंजर को, व्हाट्सएप को टाइम देते हैं ना, अगर मैं आप ही की जनरेशन का खतीब हूँ, अगर आप थोड़ा वक्त इसी तरह दीन को टाइम देना, दीन को, तो कम से कम मौलवी से पूछना ना पड़े कि अली कहाँ है कहाँ नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूँ, तवज्जो। कम से कम मौलवी से पूछना ना पड़े, पूछना ना पड़े कहाँ है कहाँ नहीं। मैं तुझसे पूछता हूँ, बता मार्को खुदा कहाँ है कहाँ नहीं। मुनीर भाई मैं मिंबर पे बैठने के बाद अपने काबू में नहीं होता, मैं कहता हूँ मैं तुमसे पूछता हूँ खुदा कहाँ है कहाँ नहीं। अरे खुद पढ़ता भी है, फिर इनकार भी करता है, नादियन। तवज्जो चाह रहा हूँ, पढ़ता भी है, इनकार भी करता है। जहाँ जहाँ तौहीद है वहाँ वहाँ अली है। अब आज बात खुल के मेरे नौजवान भाइयों, इस उम्र बेवफा का क्या भरोसा? बेवफा चीज है, बेवफा चीज है, इसका कोई भरोसा ही नहीं, कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं। अब बात खुल के होगी, खुल के। बेवफा चीज है, सही किसी के साथ वफा थोड़ी की, कोई भरोसा थोड़ी है, कहीं भी छोड़ के भाग जाए। कहीं भी छोड़ के भाग जाए, इसीलिए हमने अली को पकड़ा।
حوالہ دیا تھا نا اصول کافی کتاب حجت باب 107 اسی کا آج دوسرا حوالہ دے دوسرا اصول کافی مجلس ریکارڈ ہوگی میں اپنے لفظوں کا سامنے اصول کافی کتاب حجت باب وہی 107 اور حدیث کا نمبر ہے 91 توجہ چاہ رہا ہوں 91 میں قبلہ ہر چیز ان کو بڑی آسان کر کے بتاتا ہوں کہ ان کو گھر جا کے یہ بھی نہ ڈھونڈنا پڑے کہ پتہ نہیں کون سی جسم میں ہے کہاں نہیں میں نے سب بتا دیا اصول کافی کتاب حجت باب 107 حدیث کا نمبر 91 جا کر دیکھو اب دیکھنا تمہارا کام پڑھنا میرا کام ارشاد ہو رہا ہے سورۃ مدثر میں توجہ تفسیر کون کر رہا ہے میرا مولا حسن توجہ چاہ رہا ہوں یہ پھر بڑا جملہ ہے قبلہ آپ نے ساری زندگی زمین اختر کی آپ کو سنا ہے یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں کیا ارشاد ہو رہا ہے سورۃ مدثر میں تفسیر کون کر رہا ہے میرا مولا حسن کون حسن جس کے سر پر علی کی دستار ہے قبلہ کی جملے کے نوجوان ابھی نہیں سنیں گے تو کب سنیں گے معاف کرنا حسین کے سر پہ حسن کی دستار علی کی دستار ہے حسن کے سر پہ بڑا جملہ تھا جو میرا خواب ہے کھانے نہیں دوں گا اب ارشاد ہو رہا ہے سورۃ مدثر پہ تفسیر کر رہے ہیں میرا مولا حسن فما لہم ان تذکرۃ وارثین اللہ کہہ رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے جو اللہ کے تذکرے سے منہ موڑتے ہیں کتنا بڑا جملہ تھا ان کو ہو کیا گیا ہے ان کو ہو کیا گیا ہے جو اللہ کے تذکرے سے منہ موڑتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں پھر اللہ کے تذکرے پر اعتراض کرتے ہیں یہی سبب ہے جب امام حسن سے پوچھا گیا مولا یہ تذکرہ کیا ہے تو کہا تذکرے سے مراد میرے بابا علی کی ولایت ہے میرے بابا علی کی ولایت ہے آج میں اپنے بس میں نہیں اگر تم اپنے بس میں ہو تو یاد رکھو منہ پہ ہاتھ لیکن اگر تیرے دل میں تھوڑی سی بھی علی کی ولایت ہوگی تو آج یہ چاردہ معصومین پورا گونجے گا جیسے ضمیر اختر نقوی صاحب کے زمانے میں گونجا کرتا تھا آج ویسے ہی گونجے گا کیا فمالا ہوں علی تذکرۃ الوارثین اللہ کہہ رہے ان کو کیا ہو گیا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں پھر علی کی ولایت پہ اعتراض کرتے ہیں لیکن کہا تو جھومے گا یہ چاندہ معصومی ویسے جھومے گا جیسے ضمیر اختر نقوی صاحب کے زمانے میں جھومتا تھا کیا اللہ کہہ رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا فمالا ہوں علی تذکرۃ الوارثین ان کو کیا ہو گیا ہے ان کو کیا ہو گیا ہے جو علی کی ولایت پہ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں پھر علی کی ولایت پہ اعتراض کرتے ہیں اللہ نے آگے کہا انہم حمر مستنفرہ یہ جنگلی گدھے ہیں توجہ چاہتا ہوں توجہ بولے باہر کھڑے بول رہے ہیں توجہ یہ جنگلی گدھے ہیں توجہ یہ جنگلی گدھے ہیں یہ جنگلی کھوتے ہیں فارغ تمہیں کا سورا جو میرے شیر سے بھاگتے
किबला अल्लाह ने शहर का गधा नहीं कहा, रोलू, रोलू गधा, रोलू। अल्लाह ने कहा अम्मार इनकी निशानी मैं तुम्हें बताता हूँ, रोलू गधा। मैंने कहा या अल्लाह ये रोलू गधा कौन है? कहा तुमने देखा नहीं, बिस्तरा कांधे, अल्लाह ने कहा तुमने देखा नहीं, बिस्तरा कांधे पे, लोटा हाथ में। अल्लाह ने कहा ये रोलू खड़े, रोलू रोलू खड़े खड़े। अल्लाह ने कहा क्योंकि जो अली पे भोंकता है उसे दर बदर ना फिराऊं तो मैं भी खुदा नहीं। तवज्जो, ये मयार है कराची का, मैं शुक्रगुजार हूं किबला, ये मयार है कराची का। अल्लाह ने कहा जो अली पे भोंकता है उसे दर बदर ना दर बदर। इसी के बेचारों को घर बसी के लिए अल्लाह ने कहा जो अली के खिलाफ बोलेगा वो रोल खड़ा, रोल रोल। अब किबला मसला ये है, मसला ये भाई थक तो नहीं गए ना। अब किबला मसला ये अल्लामा अब्दुल हकीम बुर्रादी की दर्जात की बुलंदी के लिए, हमारे यासिर की सेहत और सलामती और हिफाजत के लिए बावाज़े बुलंद नारे सलावत। तवज्जो। अब किबला मसला ये आपसे कोई नहीं, हमने सारी जिंदगी नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, हज किए, ज़कातें दी, बढ़िया है कि ईमान की बात करनी, ऐसे थोड़ी होगा। कयामत में कुछ तो अल्लाह बोलेगा। तवज्जो चारों किबला, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतने शौक से मुझे 1.5 घंटा भी सुना, नहीं तो कराची में लोग बड़े बेजार हो जाते हैं। क्या यानी किबला आपसे कोई सवाल करे, भाई दलील मांगते ना, दलील प्रैक्टिकल दौर है, आप उससे पूछे भाई तुमने ये बात की क्या दलील है इसकी, आप पूछ सकते ना मुझसे। तो इस हिसाब से भी कोई सवाल कर सकते हैं कि तुम आए बड़े ईमान की बात करने, बड़ी ईमान की बात, इतनी हमने नमाज़ें पढ़ी, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ है कि कयामत में अल्लाह इनका हिसाब नहीं करेगा? अब सारे बात करो तो मैं कुरान पढ़ूं। तवज्जो, जो आयतें पढ़ रहा हूँ ये सूरत काफ की बिल्कुल आखिरी आयत है, बिल्कुल। वाह वाह वाह। हर जाके कुरान खोल के देखना, सूरत काफ की बिल्कुल आखिरी आयत, बिल्कुल आखिरी। अल्लाह ने कहा कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब में बताऊं उनको ये एमाल की वजह से खसारे हैं। शुक्रगुजार हूं तुम्हारा, क्या एमाल की वजह से खसारे में। पता चला जितनी नमाजें पढ़ी उतना नुकसान। तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो, जितनी नमाजें पढ़ी उतना नुकसान, जितने किबला रोजे रखे उतना नुकसान। और अल्लाह ने ये कह के इस आयत में आगे का अल्लाह ने कहा फलानुकीनु लहुम यौमल क़यामत वज़ना, और मैं अल्लाह क़यामत के दिन इनके अमालों को तोलूंगा नहीं, इनकी दिमागों को तोलूंगा नहीं, इनके रोजों को तोलूंगा नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछता हूँ नौजवानों, क्या मलाइका ने ऊपर कोई परचून की दुकान खोली? जवाब दो मुझे, क्या मलाइका ने ऊपर कोई परचून की दुकान खोली है? जो किबला तराजू लेके खड़े होंगे, 1 किलो हो गया, 2 किलो, अभी भी चुप करके बैठे हो, 1 किलो हो गया, 2 किलो हो गया, 5 किलो हो गया, तो अल्लाह जो कह रहा है कि मैं तोलूं
इन बेचारों ने इतनी इबादत की, फिर भी नहीं तोलोगे? या अल्लाह थोड़ी तो तोल, थोड़ी तो तोल। अल्लाह ने कहा हमारे यासिर, तेरे सामने तो मिसाल भी मौजूद है। जब तू दुकानदार के पास जाता है तो पहले देखता है आटा, चावल, चीनी, पहले देखता है। अगर जिन्स पसंद आ गई, तवज्जो कर रहा हूं, मैं शुक्रगुजार हूं आपके मुस्कुराने के। अगर जिन्स पसंद आ गई तो फिर कहते हो कि इतना गिरे तो अल्लाह ने यही तो कहा, इन्होंने नमाजें पढ़ी है, रोजे रखे हैं, हज किए हैं, ज़कातें दी है, लेकिन मैं इनके ईमान में तोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब मुझे जिन्स ही पसंद नहीं। मैं इनकी ईमानों को तोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे जिन्स पसंद नहीं, जिन्स पसंद नहीं। आज दुनिया टके का मोल भी हम शियों पे इल्जाम लगाता है कि शिया नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, हज नहीं करते। आप मुझे अम्मार यासिर बताता है जाहिर नमाज हमारे लिए कि इसलिए कि हमारा इमाम हालत नमाज शहीद हुआ। रोजा हमारे लिए इसीलिए कि हमारे इमाम को हालत रोजा ज़र्ब लगी। अरे ज़कात हमारे लिए इसीलिए कि हमारे इमाम ने हालत रुकू में ज़कात दी। अरे जिहाद हमारे लिए इसीलिए कि मैदान जंग में हमारा इमाम लड़ा था, तुम्हारा नहीं। और मुसलमानों माफ करना, हज भी हमारे लिए है, हज भी हमारे लिए इसीलिए कि काबे में हमारा इमाम आया था, तेरा नहीं आया था। तुम्हारा नहीं आया था। अब तवज्जो, नतीजा देना है, नतीजा, तवज्जो, थकना नहीं, थोड़ी देर की सहमत, तवज्जो। मैंने कहा आपसे ज्यादा मुझे अभी सफर करना है, मुझे हैदराबाद जाना है, फिर सुबह इस्लामाबाद जाना है, तवज्जो जाना है। क्या अब किल्लत तवज्जो। अल्लाह कह रहे हैं इबादत तो करो, जिन्स पसंद नहीं। पता चला इबादत की भी जिन्स होती है। किबला मौसूम से पूछा गया मौला कुरान बात करता है? कहा कुरान तो कुरान, नमाज भी बात करता है। कुरान तो कुरान, नमाज भी बात करता है। अल्लाह के मुझे इनकी जिन्स पसंद नहीं। पता चला इबादत की भी जिन्स होती है। मैंने कहा परवरदिगार वो कैसे, वो कैसे? हमने मुसल्ला बिछाया, नमाज शुरू। ये है नमाज की शक्ल। अब अल्लाह कह रहे हैं नमाज कबूल तब हो जब इसमें जिंदगी आए। तुम थक गए, अगले साल बात करेंगे, समझ गए? मैं थके हुए मजमे से बात ही नहीं करता। क्या ये तो मेरे भाई लोग मस्जिदों के नारे लगा रहे हैं, ये मेरे बेचारे कंडियारों शहर का है, वहां का मोमिन बैठा है। क्या तवज्जो। अब अल्लाह ने कहा ये है नमाज की शक्ल। नमाज कबूल तब हो जब इसमें जिंदगी आए। मैं अब तवज्जो चाहूंगा, ये कराची है, अगर कोई और शहर होता तो मैं शायद बात करने से पहले सोचता भी, लेकिन अब ये कराची है, मुझे आखिरी लम्हात में नाउम्मीद ना करना। मैंने कहा यार
नमाज में जिंदगी। अल्लाह ने कहा बेवकूफ तूने मेरी इब्तिदा को नहीं देखा, सजदा आदम को नहीं था, सजदा रूह को था। तवज्जो, मैंने कहा था अगर ये कराची ना होता तो मैं बात करता भी नहीं। सजदा आदम को नहीं, सजदा रूह को था। आदम का पुतला तो इतने हजारों बरस था, तो मलाइका का काम तो उसको भी सजदा करते। लेकिन अल्लाह ने कहा जब मैं इसमें अपनी लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा पूरी, थोड़ी सी डाली तो सजदा करो। अब यहाँ अल्लाह कह रहा है कि तुम खड़े हुए शक्ल बनाई, अब नमाज कबूल तब तो जिसमें जिंदगी है। मैंने कहा या अल्लाह जिंदगी कैसे? अल्लाह ने कहा मेरा रसूल बताएगा। रसूल ने बताया हुब्बु अली और रूह की इबादत, अली की मोहब्बत इबादत में रूह है। तवज्जो, तवज्जो, नतीजा तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। अली की मोहब्बत इबादत में रूह है, रूह। अब कितना नतीजा इनके हवाले, और फिर रात जाकर सोचना कि अम्मार क्या कहकर गया। लेकिन मुझे आखिरी लम्हात पे नाउम्मीद ना करना, जिस तरह बोलते हैं वैसे बोलते आना। ये मौला सलामत रखे। अब अल्लाह कह रहा है मैं इनके एमालों को तोलूंगा नहीं, तोलूंगा नहीं। मैंने कहा क्यों? रसूल ने कहा हुब्बु अली रूह फिल इबादत, अली की मोहब्बत इबादत में रूह है। अल्लाह कह रहे एमालों को तोलूंगा नहीं। मैंने कहा क्यों? अल्लाह ने कहा अगर जिस्म से रूह निकल जाए, तवज्जो, मैं कितना जुमला कह रहा हूं, तवज्जो। मेरे भाई मैं गाली गलौज वाला आदमी नहीं, ना मेरे पापा ने कभी यूज स्टॉक की, ना मैं यूज स्टॉक करता हूं। मैं अली के बंदे को उसका चेहरा दिखाता हूं, मैं लूज स्टॉक करने वाला आदमी नहीं भाई। मैं मिंबर में कुछ आदाब है, मिंबर के कुछ तकाज़े हैं, मैं इस पे बैठ के लूज स्टॉक नहीं करता। गालियां देना, ये करना, वो करना, ये मेरा, ये नाम में आप मेरे बाबा की कोई मेरे दिखाए कभी अब्दुल हकीम ने ऐसा कोई किया हो नहीं, ना मेरा ये काम है। मेरा काम है फिर दावत फिक्र देना, सोचे ताकि अल्लाह ने कहा अगर जिस्म से रूह निकल जाए। अब मैं जुमला कहूंगा क्योंकि नौजवान तबके को समझाना पड़ता है। नौजवान भाइयों, बेटा सारी जिंदगी जायदाद की लालच में बाप की चमचागिरी करता है। मेरे अब्बू मेरे दिल का सुकून, मेरी आंखों का नूर, मैं तवज्जो ला रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए। सारी जिंदगी बेटा 2 पैसों की लालच के लिए बाप की चमचागिरी करता रहता है। मेरे अब्बू में मेरी जान, मेरे अब्बू, मैं अपने अब्बू के बगैर रह नहीं सकता। अच्छा इधर तुम्हारे अब्बू मरे, उधर फोन किया जल्दी आओ कब्रिस्तान चलिए। तवज्जो ला रहा हूं, तवज्जो। सारी जिंदगी कहते रहे अब्बू मेरी जिंदगी, अब्बू मेरी जान, अब्बू मेरी आंखों का नूर। अब अब्बू टपक गए तो ये जनाब साहब कह रहे जल्दी आओ, जल्दी आओ। तवज्जो जा रहा हूं, नतीजा दे रहा हूं, जल्दी आओ कब्रिस्तान चले। भाई क्यों? थोड़ी देर को रख, 1 दिन रख, 2 दिन रख, फिर तो कयामत में मुलाकात होगी। 1 दिन रख, 2 दिन रख, कहेगा बेवकूफ जानता नहीं, भले मेरा बाप क्यों ना हो, जितनी देर रख लूंगा उतनी बदबू करेगा। तवज्जो जा रहा हूं, भले मेरा बाप क्यों ना हो, जितनी देर रखूंगा सारा खाओ उतनी बदबू करेगा। अरे तो अल्लाह यही तो कह रहा है कि इन्होंने नमाजें पढ़ी है, रोजे रखे हैं, हज किए हैं, ज़कातें की है, लेकिन मुझे इनके ऐमालों से अली की विलायत की दुश्मनी की
से करके अदावत नमक हराम अली का दुश्मन अल्लाह ने कहा नहीं। अल्लाह ने कहा इनके ऐमालों से मुझे अली विलायत दुश्मन बदबू वाली। अल्लाह का कयामत में कहेगा ले जा इनको, मुझे इससे अली के बुक्स बदबू वाली। नौजवानों एक बात मेरी याद रखना, अगर शायद आपको किसी ने बताया है या नहीं बताया तो मेरी ड्यूटी है, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे नौजवान भाइयों, हमने ना इस दुनिया में अल्लाह को देखा ना कयामत में देखेंगे। अगर किसी के जहन में ये है कि कयामत में अल्लाह आएगा तो भाई फिर आपका तौहीद पर ईमान ही नहीं। जो जिस्म रख के कयामत में आए वो अल्लाह तो नहीं। ये आयत मैंने पिछले साल 5 सफर को पढ़ी थी कि रसूल ने कहा था कयामत के दिन मैं मिंबर पे होगा, अली मेरे साथ होगा। मैं ये बात बता दूं मेरे बच्चों और जो नौजवान लोग, ये वो हस्तियां हैं जिनसे तुम दामन नहीं छुड़ा सकते। अल्लाह को हमने ना इस दुनिया में देखा ना कितना कयामत में देखी। वास्ता इनसे पढ़ना है। मैं आपको चले एक बात कह के, सर टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन टाइम की आप परवाह ना करें। एक बात कह के मैं आपको बताता हूँ। मेरे भाई आप सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कि बिला बाहर लिखा होता है हुकूमत पाकिस्तान। मैं आपसे पूछता हूँ आपने कभी देखी? मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ, मेरे भाई मुझसे बात करो बात, मैं सवाल जवाब वाला बंदा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ आपने कभी हुकूमत पाकिस्तान देखी? तो हुकूमत पाकिस्तान है क्या? जो देखने में नहीं आती फिर भी हुकूमत है। आप दफ्तर के अंदर जाते हैं, बंदा बैठा होता है टाई भी लगा के, बोलता है जी नहीं बताए। आप अगर उसको जाके बोले भाई हुकूमत पाकिस्तान से काम है, बोलेगा बेवकूफ नुमाइंदा तो मैं हूं। नुमाइंदा मैं हूं, जो कहना है मुझसे कहो। हुकूमत पाकिस्तान से तुम्हारा क्या जाए? नुमाइंदा मैं हूं। इसी तरह ये मौलवी कयामत में भागते फिरेंगे, अल्लाह कहाँ है? जहां जाएगा अली मिलेगा। मिल के हैदरी इसी तरह कयामत में भागते फिरेंगे। जो बच्चे बैठे उनको, बुजुर्गों को नहीं कह रहा, ये किबला मैं रोजमर्रा की मिसालें देकर इनको समझाता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी जनरेशन का खतीब हूँ।
میں لڑائی جھگڑے والا بندہ ہی نہیں. میں مثال کو دیتا ہوں تو بیٹے بچے کو بھی سمجھ میں آئے گا. بھائی سمپل سی بات ہے, اللہ ایک پاور ہے. انہوں نے کہا ہے اب اگر آپ یہ سوچتے کہ بھئی قیامت میں اللہ آئے گا, یہ ہوگا, نہیں. اللہ نے کہہ دیا ان سے جو میں نے کہا وہ تم نے اس دنیا میں کیا, اب قیامت جانا تم جانو. میں نے جو کہا تم نے اس دنیا میں کیا. اب قبلہ کوئی بات ابھی نوجوانوں کو کہتے ہیں, نوجوانوں کو کہتے ہیں. میں نے کہا آپ نہیں تھکنا, توجہ چاہو. نوجوانوں کو کہتے ہیں بھائی اگر اتنا ہی تھا, اتنا ہی تو بشریت کے لبادے میں کیوں آئے؟ توجہ چاہو کیوں آئے؟ اگر موسوم کی روایت نہ ہو, میری گردن کاٹ کے نہ ٹانگ دو. میرے موسوم نے فرمایا کہ اگر ہم بشریت کے لبادے میں نہ آتے اور اپنی اصل حالت میں آتے تو تو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتا. تو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. ارے آج تو بحث کرتا ہے علی کے آنے پہ, حسن کے آنے پہ, حسین کے آنے پہ. یہ تو زندگی رہی. موضوع تو ابھی مجھے بڑے پڑھنے ہیں کراچی میں, یہ تو ابھی تم زندگی رہی تو آگے پڑھوں گا. لیکن ایک بات کے مجھے بتا رہا ہوں, آج دنیا ان کے آنے پہ بحث کرتی ہے. مالک اشتر نے, ایک بات میں کہہ رہا ہوں, مالک اشتر نے, کیونکہ منیر بھائی نے کہا ہے کہ مجھے آج مسائل مولا عباس میں پڑھنے, لیکن میں ایک جملہ کہہ کے آتا ہوں. مالک اشتر نے پوچھا مولا علی سے, مولا آپ کو آج تک سب سے زیادہ فخر کس بات پہ ہے؟ توجہ, مالک اشتر پوچھ رہے مولا علی سے آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ فخر کس بات پہ ہے؟ کہا عباس کا میرے گھر میں نازل ہونا. پیدا ہونا نہیں. توجہ, کہا فخر کس بات پہ؟ کہا میرے گھر میں, میرے یادی آپ کے گھر میں حسن بھی ہے, حسین بھی ہے. آپ کہہ رہے مجھے فخر ہے عباس کا میرے گھر میں نازل ہونا. علی نے کہا عمار تو جانتا نہیں کہ مباہلے والے دن میں نے دونوں رسول کو دے دیے, حسن بھی رسول کو دے دیا, حسین بھی رسول کو دے دیا. اب عباس ہے میرا بیٹا. نوجوانوں مقام دیکھو عباس کا, جن کے کپڑے جنت سے آئے وہ حسن اور حسین ہیں, اور جس کا کرتا بطول سے دیکھا جناب ام البنین رو رہی ہے,
अली ने कहा उम्मुल बनीन क्या हुआ? कहा मौला जैसा बेटा आपने मांगा था वैसा बेटा अल्लाह ने दिया है। तो अली ने कहा फिर रो क्यों रही हो? कहा मौला जब से आया है आंखें नहीं खोलता। अब जुमले सुनो। अली ने कहा आखिरकार मेरा बेटा है। मैंने तब तक आंखें नहीं खोली थी जब तक रसूल नहीं आए थे। उम्मुल बनीन ये तब तक आंखें नहीं खोलेगा जब तक हुसैन नहीं आएगा। अली ने ये नहीं कहा कि मुझे दो, अली ने कहा जाओ हुसैन को लेके आओ। अज़ादारों सादातों गैर सादातों, इसी जुमले पे आज तकरीर खत्म हो जानी चाहिए थी। जैसे ही हुसैन आया ना, अब्बास ने आंखें बाद में खोली, पहले बाजू आगे की। जिसका मकसद ये था मौला मेरे बाजू कुर्बान। अब मेरे भाइयों जुमले सुनो तारीख के। इधर हुसैन ने गोद में उठाया जनाब ज़ैनब आई। हुसैन मुझे दो, मेरा भी तो भाई है। हुसैन मुझे दो, मेरा भी तो भाई है। हुसैन ने जनाब ज़ैनब को दिया। अब जुमले भी सुनना, क्रिया करना। इधर जनाब ज़ैनब ने हाथों पे लिया, लेके कोने में गई और कान में कुछ कहा। इधर कान में कहना था, या कराची वालों अली ने कहा बेटा क्या कहती हो अब्बास को? कहा बाबा अम्मा ज़हरा ने वसीयत की थी कि अब्बास आए तो मेरा सलाम देना, और अब्बास से कहना अब्बास ज़ैनब की चादर का ख्याल चादर का ख्याल रखना। अज़ादारों मसाइल तो बड़े तवील हैं, लेकिन जितना हो सकेगा मैं तुमसे जिक्र करूंगा। जब 2.5 बरस का अब्बास हुआ, 2.5 बरस का, किबला रोज जाता था शाम को जनाब ज़ैनब के पास। रोज जाता था जनाब ज़ैनब को बड़ा प्यार था अब्बास, रोज जाता था। लेकिन वफा सुन अब्बास की, क्योंकि तरबियत थी उम्मुल बनीन की। मेरे नौजवान भाइयों, एक दिन अब्बास वापस आया। जनाब उम्मुल बनीन ने हाथ पकड़ा, कहा अब्बास बेटा बैठो। 2.5 बरस का शहजादा बैठा। अब मुझे देखना और कीला करना। माँ के सामने अब्बास का सर नीचे। अब्बास ने कहा अम्मा हुक्म। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा बेटा हुक्म नहीं, इसे मेरी वसीयत समझ कि रोज रोज जनाब ज़ैनब के घर ना जाया करें। अब्बास ने कहा अम्मा क्यों? कहा अब्बास बेटा आप कनीज के बेटे हो, वो बतूल की बेटी है।
जाओ मेरे भाई को तो लेके आओ। अज़ादारों जनाब फिज़ाई अब्बास को लिया। जो अब्बास बहन के पास खेलता खेलता आता था, आया हाथ पीछे सर नीचे, सर नीचे। जनाबे ज़ैनब ने कहा अब्बास सर उठाओ। कहा अम्मा ने मना किया है। कहा अब्बास मुझे बहन कह के बुलाओ। कहा अम्मा ने मना किया है। ये कहना था, अब जुमले सुनना, ये कहना था, यह जनाब ज़ैनब ने प्यार में कहा, प्यार में, अब्बास अगर मैं तेरी कुछ नहीं तो आया क्यों है? ये कहना था, 2.5 बरस का बच्चा पलटा, इधर पलटना था। यह जनाब ज़ैनब ने गले से लगाया और कहा अब्बास तू अभी से नाराज हो गया, मैं तो तेरे सहारे करबला जाऊं। हाँ ज़बारो, जुमला सुनो, एक तारीख का जुमला सुनो। जब मेरे मौला अली की शहादत से पहले, मेरे मौला अली की शहादत से पहले, मेरे मौला अली ने खत लिखा अपने बेटे हसन को, हसन बहनों को लेकर कूफे आ जा। जुमला एक आ गया, मेरी ज़बान में नहीं पढ़ूंगा, मेरा मसाइल मुकम्मल नहीं होगा। तारीखों ने लिखा जिस दिन ये काफिला कूफे पहुंचा, अली ने ऐलान कर दिया कोई घर से ना निकले, कोई छत पे ना आए। अली सबसे पहले आए ज़ैनब के महमिन के पास। जुमले सुनना। अली ने कहा ज़ैनब बेटा सफर में कोई तकलीफ तो नहीं है? जनाब ज़ैनब ने महमिल के अंदर से जवाब दिया बाबा कैसी तकलीफ है? बाबा अब्बास भी साथ है, हुसैन भी साथ है, तकलीफ कैसी? अब जुमले सुनना और सारी रात टकरे मार के मातम करना। ये कहना था, अली ने कहा ज़ैनब बेटा पर्दा हटा। इधर पर्दा हटाया, तारीखों ने लिखा जनाब ज़ैनब ने मुंह पे हाथ किए, मुंह पे
कहा मौला इजाजत दे, कहा अब्बास नहीं, वापस गया। तारीखों में लिखा तलवार की टेक लगा दी। अब्बास खड़ा था, या इतने में बनी हाशिम के 45 बच्चे हाथों में खाली पूजा, और तारीखों ने लिखा कि उन 45 बच्चों के आगे थी सकीना। जैसे अब्बास ने देखा, कहा आका सादी हुक्म, कहा चचा आपकी मौजूदगी में असगर प्यासा, चाचा ये बच्चे प्यासे, चाचा पानी लाओ। ये कहना था अब्बास ने कहा बेटा बाबा से इजाजत तुम दिलवाओ, पानी मैं लाता हूं। किबला ये कहना था। अब तारीखों के जुमले सुनो। तारीखों ने लिखा कि अगर इम्तिहान ना होता तो इस मंजर में करबला में कयामत आ जाती। आगे आगे जनाब सकीना, खाली मशकीज़ा हाथ में, पीछे अब्बास, अब्बास के पीछे बनी हाशिम के 45 बच्चे। हुसैन जैसे शहंशाह ने जब ये मंजर देखा 3 मरतबा खड़ा हो गया, फिर बैठ गया, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, और अब्बास को कहा अब्बास लेके आए हो सिफारिश, लेके आए हो, और
ان کو اپنی حفظ و امان میں اور ہر شر شیطانی سے محفوظ